and namaskar guys, this is me Mugdha and welcome back to a new travel vlog. I'm super excited for my next trip and which is going to be Punjab trip, and me, my sister, my uncle and my auntie we four are going to, like, बचपन से ऐसा है कि my sister is a single child, like my uncle auntie के लिए वो अकेली बेटी है और टेक्निकली मैं भी हूँ और मेरी मम्मा डैड के लिए मैं अकेली बेटी हूँ एंड टेक्निकली वो भी उनकी बेटी है। तो ऐसा होता था कि बचपन से हम, मतलब मैं, मम्मा पापा कहीं जा रहे होंगे तो वो हमारे साथ रहती, तो ऐसे हम लोग बचपन से जाते थे और अभी भी बड़े होके भी हम लोग जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं फॉर 7 days, एक्सक्लूडिंग इट्स 6 days टेक्निकली बिकॉज हमारे बाकी दिन तो ट्रैवलिंग में जाएंगे। तो हाँ, 6 days हम लोग जा रहे हैं पंजाब और आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इतना लंबा टूर, लाइक आउट ऑफ महाराष्ट्र, पहली बार हो रहा है मेरा लॉकडाउन के बाद एंड 3 साल के बाद। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और अभी जस्ट मैं ना पैकिंग करके उठी हूँ, शीरो नहीं, बाजू में बैग है ब्लैक कलर का। अभी जस्ट मेरा पैकिंग हो गया है और मैंने सोचा यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दूँ बताने के लिए क्या क्या है। बाय, देख रहा हूँ, बाय। खाली एडजस्ट ना थोड़ा ना। So on the way, this was the scene that I saw and it was very pretty, so I had to record it. Hey guys, good morning. हम लोग पहुँच गए हैं बांद्रा terminus. So we are starting, like our train is from Bandra and it will go from Bandra. So it will start from Bandra. We're boarding the train from Bandra and right now we just reached. We came here by a cab. We just reached here and now we'll have some breakfast. So we are here for the breakfast. Let's see. Opinion about the trip. I'm excited. But why don't you look excited? I want a proper opinion. Excited क्यों नहीं लग रही है? Excited. So we got some coffee and we got bread omelette for both of us. Now we'll drink the coffee and eat the bread omelette. And then हाय, खूप एक्साइटेड आहे. आता आमची जर्नी चालू झाली आहे, बघू पुढे काय काय होतं. सो ट्रेन तो आ गई है प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी, अभी बस बोर्डिंग होना है। मतलब अभी ट्रेन के दरवाजे जो है खुले नहीं है, बाकी ट्रेन आ गई है, मतलब टेंशन नहीं है। अंकल गए हैं डब्बा देखने के लिए, तो डब्बा देख के आएंगे और फिर हम आगे जाएंगे बैग्स लेके क्योंकि अंदर बैठना है। ओके, बाय। हेलो गाइस, तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और सीट्स वगैरह मिल गए हैं। अभी तक एसी चालू था, जैसे ही मैंने ब्लॉक करना चालू कर दिया है एसी बंद कर दिया है इन लोग ने। और अभी मैं दिखाऊंगी हमारे सीट्स। एक्साइटेड, एक तो एसी ट्रेन है तो विंडो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो पसंद है ऐसे बड़ी विंडोज़ में बैठना क्योंकि अच्छे से देखने को मिलता है बाहर का। The train journey was super long, but thankfully half was the day, so we had a lot of things to see outside and we had a big window, so बहुत कुछ देखने को मिला and boring नहीं था, मतलब journey अच्छा था। So we boarded the train from Bandra and we got down at Chandigarh station and here we are waiting for the taxi that we booked. Here as well, the way to our destination was so pretty. This is a Nangal Canal. If you know Bhakra Nangal Dam, it was this and it's very very pretty. Hi. So सकाळीच बोलते आता, खूप कंटाळा. The view from our room was surreal. The sun just came out and the mountains were shining in the sun, and then I decided to read a book in the sunlight, and this experience was actually so good. Like I can't actually forget and I can't match the level of peace I felt at the moment I was reading, and it was so good. Good morning from Dharamshala. So yeah, we are in Dharamshala. We traveled from Bandra to Chandigarh and then from Chandigarh to Dharamshala in a car. So now today morning we are going to sightseeing in Dharamshala
and now we just woke up. I finished reading a book थोड़ा सा, और फिर my sister is taking a bath and फिर मैं जाऊँगी नहाने, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है और निकलना है. तो ये अपडेट थी कि हम लोग धर्मशाला पहुंच गए हैं. दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट. आलू परोठा, पोहे आणि काय बरं, और क्या है, दही. और ये है व्यू, दिख भी नहीं रहा है. हाँ, ये है व्यू, पहाड़. इतना मोबाइल में नहीं दिख रहा है जितना हमको आंखों से दिख रहा है, बिकॉज धूप बहुत है. एंड शी इज़ अ बर्थडे गर्ल. The streets of Dharmashala were so peaceful yet so of life. Some were traveling in cars, some were walking, some were opening their shops, and yet the peace was maintained. There were so many cars, but no literal honking was there, and it was very peaceful. People were giving way to go. People were waiting for people to go. People were making way for people to go, and it was very peaceful. And I loved the vibe there. It was very, very nice. The road was surrounded with trees, and we went to Naddi village, and here you can see a snow-capped mountain. Like, I'm screaming. I've never witnessed snow in my real life. Naddi village has a view and also some really awesome shops where you can get Tibetan stuff and gifting options for your loved ones. Also, there are a lot of places with good momos. So we are having some momos in such a beautiful view. और ये छोटा सा इनका शॉप है, and हम लोग सभी मोमोज खाएंगे. We then went to this beautiful church near Dharamshala, and it was so good. The interior of the church was very nice, and it was filled with trees. This is the beautiful church. The surroundings are very pretty. Though it's like 11:30 in the morning. It's almost 11:30 in the morning, but it doesn't feel like it. So there's a lot of sun, but it's not that hot. It feels good. So you can see there's a lot of sun, but it doesn't feel anything. No, like hotness, no sweat. The breeze is quite thanda, so doesn't feel very uncomfortable, even though it's like 11:30, 12. Tell me the taste, okay? Chutney is looking very good. We had momos 2 times, and both of them were so delicious, so damn good, with the perfect chutney also. View अभी देख लो अभी, क्योंकि जो व्यू है वो सुबह दिख नहीं रहा था क्योंकि sun was from there. तो अभी जो है sun is behind us, so ये व्यू दिख रहा है. एक्चुअली जो आप क्लाउड्स देख पा रहे हो यहाँ पे, इसके पीछे एक माउंटेन है जिसका नाम है त्रुंड, जो है पूरा स्नो कवर्ड, और वो अकेला माउंटेन है जो स्नो कवर्ड है. अभी आएगा सब हमको दिखेगा नहीं, बट हाँ वो जो है वो एक स्नो कवर्ड माउंटेन है जो दिख नहीं रहा है. इफ़ इन केस कल सुबह वो दिखता है तो मैं बता दूँगी, वरना है इसके पीछे एक माउंटेन. ये मेरी बात सुन लो. हम बाद में गए थे भागसूनाग टेम्पल. भागसूनाग टेम्पल हमारे स्टे से लिटरली 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और आते वक्त जो रोड था वो पूरा दोनों तरफ से शॉप्स से भरा हुआ था. सो इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी एस्थेटिक, वेरी कलरफुल. एंड भागसूनाग टेम्पल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, थोड़ा काम चालू है, बट स्टिल द वाइब ऑफ द टेम्पल वॉज वेरी प्रिटी. एंड जो भागसूनाग जी है वो एक एक्चुअली नाग है, एंड उनको प्रेयर किया था जब भी पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था धर्मशाला में, तो तभी उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेरा मंदिर बना लो, एंड तब से ये मंदिर यहाँ पे है. जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स थे, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करी. एंड आते आते रास्ते में हमें बहुत क्यूट कैफ़े दिखा जिसका नाम था कोइस कैफ़े, एंड वहाँ का कॉफ़ी वॉज सो डैम गुड. सो आई गॉट दिस ब्लैक टॉप. खोल के बताइए. जिस पे ये एम्ब्रॉयडरी काशिदा है ना, ये हाँ जी काशिदा बना है इस पे. और दिस इज अ जैकेट. ये शॉल का नाम क्या होता है? याकवुल होता है. या क्या? याकवुल. याक वुल के बने हुए ये शॉल्स थे. जो ये शॉल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे शॉल्स, और यू कैन गेट अ जैकेट मेड आउट ऑफ इट. तो मैंने ये शॉल चूज़ की जिसमें बहुत सारे कलर्स है, और उसका ये जैकेट बन गया है. वेरी प्रिटी, पॉकेट्स भी है, और ये मैं सिक्किम में पहनूंगी. Hey guys, good morning. So this is the day 2 in Dharmashala, which is our day 4 of the trip.
and so we are going to Dalhousie. So we are checking out of this hotel today and we are moving to Dalhousie, which is 5 to 6 hours away from here. And we got ready. I wore this sweater because it's very 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 cold there. इधर ही इतना हम लोग पंखा भी नहीं लगाया है अभी और इतना ठंडी है कि मेरे को स्वेट भी नहीं हो रहा है इतना स्वेटर पहन के. तो डलहौजी में इससे भी ज़्यादा ठंडी है बिकॉज इट्स ऑन अ हायर लेवल. सो आई वोर द स्वेटर, checkered pants, and yeah, that's my outfit. I got this ring yesterday and I wore this. This is very pretty. And yeah, I'm wearing some golden clip hoops and now we leave. Next morning we went to Tibetan monasteries in Dharamshala, which is very famous because His Highness Dalai Lama stays here and he visits here often. So ये टिबेटियन मोनास्ट्री काफ़ी शांत थी, काफ़ी पीसफुल थी. यहाँ पे बात नहीं हो रही थी ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ क्लिप्स शूट किए एंड सोचा कि बाद में वॉइस ओवर दे दूँगी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये मॉन्यूमेंट्स बने थे, स्कल्पचर्स बने थे जो फ्री टिबेट के मैसेज को दर्शा रहे थे. यहाँ पे कई शॉप्स थे जहाँ पे टिबेटियन एंड बुद्धिज़्म का स्टफ़ मिल रहा था जो डेकोर के लिए होता है या फिर जो मीनिंगफुल होता है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर हाउस. एंड द टेम्पल वॉज वेरी शांत, वेरी काम. बहुत वहाँ पे प्लेजेंट सा एक वाइब था और मॉन्क्स प्रेयर भी कर रहे थे, कुछ मॉन्क्स बातें कर रहे थे. द प्लेस वॉज वेरी नाइस. और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी थी, वो एक वॉल थी जहाँ पे फ़ोटोज़ लगे थे लोगों के जिन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया था टू फ्री टिबेट. एंड उसमें बहुत यंगस्टर्स भी थे रेंजिंग फ्रॉम 17, 16, 18 टू ओल्डर पीपल एंड इट वॉज वेरी नाइस. ये था मेन टेम्पल बट जहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं था. तो या we are having some cheesecake. Looks yum. The cafe is also super aesthetic, wooden made. The tables are wood, the chairs are wood, and I just got 2 of these and an anklet for her. Now we are gonna have it. काइंड ऑफ खूप मस्त आहे. हो नो कसं आहे? गुड मॉर्निंग. हम अभी इस वक्त है डलहौजी में. डलहौजी एक धर्मशाला से ही थोड़ा 5-6 घंटे की दूरी पे है. और अभी हम कल रात को मतलब कल शाम को यहाँ पे पहुँचे. उसके बाद हम मार्केट गए. मार्केट का आई थिंक मैंने आपको दिखाया था, हम लोग ने वहाँ पे गुलाब जामुन खाए थे जो काफ़ी सही थे, टॉप नॉच. अभी हम जा रहे हैं घूमने. डलहौजी के पास एक खजियार करके जगह है, वहाँ पे. डलहौजी के सारे रास्ते इतनी ज़्यादा सुंदरता से सजाए गए थे. रास्ते के दोनों बाजू में फ्लोरल प्लांट्स लगाए गए थे जिसपे बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आए थे और इतने सुंदर वो ब्लूम हुए थे. इतना ज़्यादा सनलाइट था तो काफ़ी सुंदर लग रहा था. और जब हम जंगल के रास्ते में गए वहाँ पे तो मैं पागल हो गई थी क्योंकि पूरे जंगल में, पूरे रास्ते में दोनों साइड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेजीज थे जो मतलब ऐसे किसी ने लगाए नहीं थे, वो ऐसे ही आए थे नेचुरली. वी हैव रीच्ड खजियार एंड इट इज़ सो गॉर्जियस. लाइक इट लुक एट दिस. आई डोंट थिंक सो द कैमरा कैन कैप्चर इट दैट वेल, बट हाँ काफ़ी खूबसूरत है. सो ये काफ़ी खूबसूरत है. यहाँ पे पूरे पेड़ है एंड दिस इज़ लाइक अ फ्लैट सर्फेस जहाँ पे बैठ सकते हैं. पैराग्लाइडिंग हो सकती है, गाड़ियाँ बाहर पार्क है और यहाँ पे इतनी सारी डेजीज है, लाइक क्रेजी. लव. काय आवडलं इथे? नज़ारा. ओके. एक बार कोई चीज़ खाई, पसंद आई और वापस नहीं खाया तो क्या ही मतलब बनता है, राइट? हम शाम को वापस मार्केट गए थे और बहुत ज़्यादा खा के शॉपिंग करके वापस आए.
उसके बाद दूसरे दिन हम गए थे वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए अमृतसर. सो वी ट्रैवल्ड फ्रॉम डलहौजी टू अमृतसर और ये रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए हम वहाँ पे गए. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, द वाइब, एवरी वन वॉज स्क्रीमिंग भारत माता की जय, वंदे मातरम कॉन्स्टेंटली. कोई ना कोई तो चिल्ला ही रहा था, कोई ना कोई तो बोल ही रहा था. बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे और लोग इतने इंथुजियास्टिक थे टू सी द विटनेस द सेरेमनी. और यहाँ पे एक ऐसा ट्रेडिशन है कि लेडीज़ को नीचे बुलाते हैं डांस करने के लिए और ये लेडीज़ गए थे और उन्होंने पूरा स्टेज, पूरा रोड मचा दिया था वहाँ पे सच्ची में. इसे दोहराने का प्रयास करें. एक बार सुनिए, आप सभी के बीच बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है. आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने साथ थीम सॉन्ग के बीच दोहराने का प्रयास करें. धन्यवाद. सेरेमनी पर एक बार बड़ा स्वागत है. भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रैली के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं और आज के परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर अभिनव कुमार. महिला प्रहरी सीता रानी और प्रीति कुमारी. भारत माता की जय. नेक्स्ट डे सुबह हम गए थे गोल्डन टेम्पल अमृतसर और मेरा लाइफ का फर्स्ट गुरुद्वारा विजिट वॉज गोल्डन टेम्पल अमृतसर. एंड पहला ही एक्सपीरियंस इतना सुंदर था. इतने लोग थे वहाँ पे पर फिर भी मैनेजमेंट वॉज सो गुड. सबको पानी के लिए जगह थी, सबको खाने के लिए जगह थी, फैंस थे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, बैठने के लिए जगह थी और शूज़ रखने के लिए अलग जगह थी. द मैनेजमेंट वॉज टॉप नॉच और इतना शांतता था इतने लोग होने के बावजूद. ये प्लेस मुझे काफ़ी पसंद आया. उसके बाद हम गए थे जलियांवाला बाग. जलियांवाला बाग में मैंने शूट नहीं किया था बट इतना सुंदर था, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था और मैंने वो कुआं भी देखा जिसमें लोगों ने कूदा था और वो कुएं को कुछ चेंज नहीं किया है, वो पेंट और ये सब वैसे का वैसा ही रखा है. सो अभी हम हैं अमृतसर स्टेशन पे और हमारी जो 7 दिन की जर्नी थी स्टार्टिंग फ्रॉम 27th काफ़ी सही थी. मज़ा आया बहुत. कभी भी कंटाला नहीं आया, कभी बोर नहीं हुए थे. नींद भी अच्छी हुई, खाना पीना भी अच्छा था. अभी जो ट्रेन है वो का थोड़ा टेंशन है बट बाकी सब ऑन पॉइंट था. मेरे बाल काफ़ी गंदे लग रहे हैं. तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जर्नी. अभी की जर्नी ज़रा मतलब ऐसे कंटाला आने वाली है और बहुत गर्म भी होने वाला है पर चलो अभी देखते हैं क्या होता है. और जो भी डेस्टिनेशन देखे वो अच्छे, मैं आपको रेकमेंड करूँगी. धर्मशाला तो पक्का जाओ सच में. गर्दी मत करो, कचरा मत करो, वहाँ पे शांति बना के रखो. बहुत शॉपिंग किया है, एक बैग बढ़ गया मेरा, इतना शॉपिंग कर लिया. तो अभी मिलती हूँ बाद में. और हमने ये भी लिया